Students, now today we are going to start with other new topics on communicable disease. After these two topics, the syllabus is going to be finished. So I will going to share a video with you all. Now see, if we talk about dengue, so dengue fever is a mosquito-borne tropical disease caused by dengue virus. So basically dengue fever जो होता है एक mosquito-borne टॉपिकल डिजीज है जो कि यूजली हमारे डेंगू फीवर की वजह से होता है बॉडी में. देन इफ यू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, व्हेन मस्कीटो कैरिंग डेंगू वायरस bites a person, the virus enters in the skin together with the mosquito saliva. तो mosquito saliva के अंदर जो है they get entry into the patient's body. It binds to and enters the white blood cells and reproduces inside the cell while they move throughout the body. And this is how they circulate in whole body. यानी कि they enter in the WBC. WBC means white blood cells, and after that they enter into white blood cells. Then they move into the blood vessels, then into the lymphatic system and other body parts. And especially after few weeks, they also damage the bone marrow also. Then after that, in severe infection, the virus production inside the body is greatly increased, and many more organs such as liver and the bone marrow can be affected. And fluid from the bloodstream leaks through the wall of small blood vessels into body cavity. यानी कि in severe condition, what is happening? A virus which is produced in the body, they have multiplied in number. They will enter in different organs like liver, like bone marrow, and then they start damaging these areas. And also, our body fluid, especially from the brain stem, they start leaking. They start releasing from small blood vessels into the body cavity, right? So, as a result, what happens? Less blood circulate in the blood vessels and the body pressure becomes so low that it cannot supply sufficient blood to the vital organs. What happens? रिजल्ट में क्या होता है? जब ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद नहीं होएगा तो इससे क्या होगा? हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इतना धीमा हो जाएगा जिससे कि क्या होगा? सफिशिएंट ब्लड हमारे वाइटल ऑर्गन्स में अवेलेबल नहीं होगा. देन फर्दरमोर dysfunction of the bone marrow lead to reduced number of platelets which are necessary for effective blood clotting, and this increase the risk of bleeding and the major complication of dengue fever. तो जब भी पेशेंट को, वैसे हम इसे डेंगी बोलते हैं, ठीक है, बट हम लोग के जो स्लैंग हम इसको डेंगू फीवर बोलते हैं. तो ये धीरे धीरे क्या होता है, जब ये हमारे शरीर के अंदर मस्कीटो बाइट की वजह से जब ये हमारे शरीर में एंटर करते हैं ये वायरस, कुछ समय के लिए ये हमारे लिवर के अंदर मौजूद रहते हैं. दे मल्टीप्लाई और दे मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये बोन मैरो तक जाते हैं. एंड दिस इज हाउ, इस तरीके से धीरे धीरे जो है हमारे शरीर के अंदर इसका अटैक होना शुरू होता है. ठीक है. अब जैसे डेंगू फीवर के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा ना, ब्लड वेसल्स भी कभी कभी ड्रॉप होने लगती हैं क्योंकि आपका बोन मैरो हैम्पर हो चुका है, लिवर हमारा हैम्पर हो चुका है. तो इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या होगा, शरीर में आपका बीपी जो है, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, वो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से एक तो बीपी ड्रॉप हो गया क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड तो मौजूद है ही नहीं, इस वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग गया, ब्लड प्रेशर कम होने लग गया. और साथ साथ में जो है धीरे धीरे आपका जो प्लेटलेट का जो नंबर है वो भी कम होने लगता है. तो उससे क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने के चांसेस डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. देन डेंगू फीवर में व्हाट कैन बी द स्टेजेस? दिस इज फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज, रिकवरी फेज. देन फेब्राइल फेज टेक अप टू 7 days. दिस इज इट स्टे फॉर 7 days. ठीक है. जैसे इन दैट इट कम्स इज हाई फीवर, हेडेक, जनरलाइज अर्थेल्जिया, myalgia, petechiae, bleeding from mucous membrane, rash occurring 50 to 80%. यानी जॉइंट पेन होगा पेशेंट को,
और मसल पेन होगा पेशेंट को, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा, पेशेंट को हेडेक होने लगेगा। तो इस तरीके के जो है कंडीशन पेशेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। और साथ में मैंने एक इमेज ऐड करी है, इस तरीके के रैशेज जो डेंगू का मरीज होता है बेटा, फर्स्ट 7 डेज के अंदर इस तरीके के रैशेज जो हैं ये आप पेशेंट के शरीर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक पेशेंट के अंदर नहीं होता, 50 से 80% जो पॉपुलेशन होती है सिर्फ ये रैशेज उनके अंदर पाए जाते हैं। देन अगर हम क्रिटिकल फेज की अगर हम बात करते हैं तो ये रहता है 2 दिन तक। 2 दिन हमारे बहुत खतरनाक होते हैं बेसिकली पेशेंट के लिए। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? लिकोपनिया, थ्रोम्बोसाइटोपनिया, एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी लीडिंग टू प्लाज्मा लीकेज दैट लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो सकता है इन चिल्ड्रन। फिब्राइल फेज इज कॉमन एंड बच्चों के अंदर नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, बच्चा खाना नहीं खाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपनिया हो जाएगा। और इस तरीके के अगर आप देखेंगे इस इमेज में तो पेशेंट को गम में से अगर आप ब्रश बहुत रगड़ के कर देंगे तो एक छोटे से इंजरी से भी जो है गम में से बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग जो है वो निकलना शुरू होती है। तो ये एक हमारा क्रिटिकल फेज होता है जिसमें बहुत हमें पेशेंट का ध्यान देने वाली बात होती है। देन वी हैव रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में 2 to 3 days अगेन। देन इसमें क्या क्या चीजें या किस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो आप पेशेंट के ऊपर देख पाते हैं ना। तो सबसे पहला आता है आपका स्टेबलाइज हीमोडायनेमिक स्टेटस। आपका जो बीपी ड्रॉप हो रहा था, ठीक है, आपका जो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, आपकी WBC, आपकी जो हीमोडायनेमिक स्टेटस था वो धीरे धीरे रिकवरी फेज के अंदर आ रहा है, वो नॉर्मल वैल्यूज की तरफ आ रहा है, ठीक है। देन अब पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो भी जो है नियर टू नॉर्मल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन ओवरऑल क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट, यानी ओवरऑल क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट मतलब हो गया आपका ब्लड प्रेशर, आपका वाइटल साइन पेशेंट का, रेस्पिरेशन हो गया, इनटेक आउटपुट जो आप चेक कर रहे हो पेशेंट का, वो सब चीजें नॉर्मल रेंज के अंदर आने लगती हैं। तो ये हमारे लिए इंडिकेशन होती हैं कि हाँ भाई पेशेंट जो है वो रिकवरी फेज में है। देन इंक्रीज इन फ्लूइड ओवरलोड कैन कॉज सेरेब्रल एडीमा। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर शरीर के अंदर फ्लूइड का ओवरलोड होने लगता है, ठीक है, तो कई बार उसकी वजह से हमारे ब्रेन एरिया में सूजन आने लगती है जिसको सेरिब्रल एडीमा कहते हैं। तो ये चीज का जो है हमें पेशेंट के लिए ध्यान रखना है। तो रिकवरी फेज, लेकिन ये एक तरीके का कंडीशन है जो हमें पेशेंट के अंदर ध्यान देने वाली बात होती है। देन व्हाट कैन बी द सिम्टम्स? इतना हम सबको अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट में पता चल गया है। पेशेंट को फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, मसल जॉइंट बोन पेन रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन बिहाइंड द आईज, swollen glands, रैशेज, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। देन साइन एंड सिम्टम ऑफ डेंगू, हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर भी अगर पेशेंट के अंदर एज अ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सीवियर एब्डोमिनल पेन, persistent vomiting, bleeding from the gums and nose, blood in urine, stool and vomit, bleeding under the skin, then difficulty or rapid breathing, cold or clammy skin, fatigue, irritability, restlessness। ये हमारे सिम्टम्स है जो कि हेमरेजिक फीवर के टाइम पे जो है बॉडी के अंदर आपको इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। देन व्हाट कैन बी द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस की क्या लिस्ट बनेगी? फर्स्ट यू विल गो फॉर हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट जिससे हमें ये पता चलेगा डेंगू है, मलेरिया है, क्योंकि दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, वेरिएशन है, सिम्टम सेम है। तो कई बार होता है हम जनरली बोल देते हैं, देखो अगर ना अपने घर में भी क्या होता है, हम अपने आप ही एक डायग्नोसिस बना देते, नहीं हो सकता है क्योंकि मलेरिया का सीजन चल रहा है तो हो सकता है कि अरे हो सकता है कि भाई तुमको तो मलेरिया हो रखा है, लेकिन वो एक्चुअली मलेरिया ना होके वो हो सकता है डेंगू, राइट। या किसी को डेंगू हो सकता है तो हो सकता है वो मलेरिया हो। तो इसके लिए टाइटर टेस्ट करवाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। देन हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है, आजकल कोविड के टाइम पे भी हम इसको जो है रिएक्शन टेस्ट जो है एंटीजन एंटीबॉडी सब्सटेंसेज हम इसके अंदर चेक कर रहे हैं। तो ये सब चीजों से हमें पता चलता है कि किस वायरस या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या yeast पे कितना परसेंट जो है बैक्टीरिया जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर वो मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं तो दैट मीन्स हम उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट पे क्या है, हमारे अंदर जो है क्या बन रही है, एंटीबॉडीज बन रही है, वो फाइट करने की हमारा जो शरीर है वो कोशिश कर रहा है। तो दैट मीन्स वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर मौजूद है। तो उस तरीके से फिर हम नेगेटिव रिपोर्ट या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट बताते हैं हम पेशेंट को, ठीक है। देन आप इसके अलावा पेशेंट का एंटीबॉडी टेस्ट में IgM, IgG सीरोलॉजी टेस्ट करेंगे, NS1 टेस्ट डिटेक्ट करेंगे। अदर टेस्ट में आप CBC, LFT, KFT कर सकते हैं, क्योंकि डेंगू के टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपका
ये जो मस्कीटो बाइट की वजह से आपका जो सलाइवरी जो ये सिक्रीशन है वो लिवर के अंदर अगर जा रहा है तो वो लिवर को भी हैम्पर करेगा ना, लिवर को भी वीक करेगा, आपके बोन मैरो को भी वीक कर रहा है। हो सकता है एज अ साइड इफेक्ट, एज अ कॉम्प्लिकेशन वो आगे जाके वो बाकी के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करे। तो किडनी भी आपकी अफेक्ट हो सकती है, आपका लिवर अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। हार्ट लेवल पे पानी जमा, क्योंकि हमने एज अ कॉम्प्लिकेशन हेमरेजिक फीवर में देखा था कि फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से सेरिब्रम एडीमा हो रहा था पेशेंट को, है ना। और डेंगू के अंदर सूजन आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि आपके ब्लड वेसल के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, क्योंकि 95% तो पानी होता है, ब्लड क्या है 95% पानी तो होता है, वो पानी आपके ब्लड वेसल्स में से निकल के, वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि परमेबिलिटी चेंज हो रही है ब्लड वेसल्स की, वो निकल के इंटरस्टिशियल टिश्यूज के बीच में जो स्पेसेस मौजूद होती है, जगह मौजूद होती है, उसके अंदर सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। उस वजह से शरीर में सूजन दिखाई देती है पेशेंट की। इतना डिटेल में खैर आपको नहीं चाहिए, बट जस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वजह से आपको ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर लेनी चाहिए। हो सकता है किडनी हैम्पर हो रही हो, ठीक है, हो सकता है हार्ट पे कोई फर्क आ रहा हो। डब्ल्यूबीसी का डब्ल्यूबीसी काउंट हम देख सकते हैं, ईएसआर टोटल हम देख सकते हैं, इन्फेक्शन रेट कितना बढ़ गया है। तो ये सब चीजें जो है हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस के टाइम पे एल्बुमिन लेवल, ट्रेसेस निकल रहे नहीं निकल रहे, प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन ट्रेसेस फॉर्म में 1 ट्रेस 2 ट्रेस इस तरीके से शरीर से बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें जो है हम यूरिन टेस्ट के टाइम पे देखेंगे। देन कंपनी मैनेजमेंट। तो देर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट डेंगू फीवर, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि हमने ये दवाई दे दी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है कि भाई पेशेंट का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया तो हमने पेशेंट को जो है आपने वहाँ पे मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी, फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकंड लाइन थेरेपी, पेशेंट क्योर हो गया। लेकिन ये ऐसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके लिए कोई कहते हैं ना लाइलाज बीमारियां होती है, सिर्फ हम क्या करते हैं, जो भी शरीर पे सिम्टम डेवलप हो रहा होता है उसके हिसाब से दवाइयां देते हैं। जैसे कोविड है, कोविड के लिए कोई एग्जैक्ट कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई मेडिसिन नहीं आई है, ठीक है। एक वैक्सीनेशन, हम अंधेरे में तीर मारने वाली बात है, हम सिर्फ एंटीबॉडीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं शरीर के अंदर, ठीक है। तो हम जब हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनके हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो सेम वे में इसका एज सच कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन या कोई इसका हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट नहीं है। तो आपको क्या क्या करना है, पेशेंट शुड यूज पेन रिलीवर्स लाइक असीटामाइनोफेन एंड इबुप्रोफेन टू अवॉइड द, बट सेम टाइम पे एक बात याद रखिए कि पेशेंट शुड अवॉइड एस्पिरिन, ब्लड थिनर मेडिसिन जो है वो पेशेंट को आपको बोलना है कि जी अवॉइड करना है। इससे क्या होगा, अगर पेशेंट को ऑलरेडी डेंगू है, आप एक लॉजिक लगाइए, पेशेंट को डेंगू है, प्लेटलेट डाउन है, बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है बेचारा, ठीक है, होगा क्या, अगर पेशेंट को आप हल्का सा भी वो कंघी करने की कोशिश करेगा या कहीं पर भी उसे इंजरी हो गई या ब्रश करते टाइम वो ब्रश करके छोटा सा वो कोई भी एक ट्रिक हो गया अगर गर्म के अंदर, तो वो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल रप्चर होकर जो ब्लीड करना शुरू करेगी, वो धीरे धीरे ब्लीड करती रहेगी, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो वर्क नहीं कर रही है शरीर के अंदर, क्योंकि उसकी क्षमता और उसकी क्वांटिटी कम है शरीर में डेंगू की वजह से। तो इसलिए पेशेंट को ऐसी दवाइयां नहीं खानी है जिससे कि पेशेंट का जो है ब्लड का ब्लीड होना जो वो हाई रिस्क फैक्टर पे जाए। Then patient should also take rest, plenty of fluids, then visit doctor in the time of complications. Then you have to go for bleeding prevention and control, fluid and water replacement, symptom relief and fever control. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना, ये ऑलरेडी आपको बेटा एमएसएन के हर एक टॉपिक में बताया जाता है। लेग्जेटिव, एंटी डायरल ड्रग्स, एंटी एमेटिक, एंटी साइकोटिक, एनाल्जेसिक, ठीक है, एंटी प्रोराइटिस, ये सब आपका सिम्टोमेटिक जो भी पेशेंट के अंदर आपको सिम्टम देखो उसके हिसाब से आपको जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। देन कम्स दी नर्सिंग मैनेजमेंट। देन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस ऑफ वाइटल मॉनिटरिंग। आपने जब वाइटल मॉनिटर करा तब पता चला पेशेंट को फीवर है, ठीक है, उसके लिए यू हैव टू प्रोवाइड द इंटरवेंशन। देन हाइपोवॉलेमिक शॉक रिलेटेड टू की वजह से हाइपोवॉलेमिक शॉक डेवलप हो रहा है, देन यू हैव टू डू द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, fluid therapy you have to initiate. Then fluid volume deficit related to migration of extravascular fluid to the intravascular fluid to the extravascular fluid. Again fluid shift हो रहा है, imbalance create हो रहा है, then you have to provide diuretics, then you have to raise the head area, leg lower extremity का area 30 डिग्री एंगल पे एलिवेट करना है, ठीक है।
ताकि वेनस रिटर्न आपका थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में आने लगे। ये सब डिटेल में आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्या करना है, इन सब चीजों के लिए जो है आपको बेसिक नर्सिंग इंटरवेंशन इनिशिएट करनी है। देन इम्पेयर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड डिक्रीज एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग और ड्यू टू डिजीज कंडीशन, तो वो सब चीजों के लिए यू हैव टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल थेरेपी। एंड ये एक आपके लिए मैंने यहाँ पे इमेज डाली है कि हाउ द ट्रांसमिशन इज टेकन प्लेस। नाउ सी, यहाँ से शुरू होता है, somewhat consuming protein-rich food, then increase your water intake, then eat more green leafy vegetables, then eat easily digested foods, have more fresh fruit, drink juice extracted from papaya and papaya leaves especially, ठीक है। तो ये बेसिक रेमेडी है जो आप अपने घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेंगू फीवर। Then next topic will start with is malaria. Okay. Now see, malaria is a life-threatening disease and it's typically transmitted through the bite of an infected Anopheles mosquito. दोनों में डिफरेंस है, उसका सलाइवेशन और इसका जो बेसिक मॉस्किटो है वो है एनोफिल्स mosquito. Infected mosquitoes carry the Plasmodium parasite. Which parasite is carried by this particular mosquito? That is Plasmodium parasite. When this mosquito bites you, the parasite is released into the bloodstream. जब मच्छर काटेगा, जब ये आपके पास आएगा और ये बाइट करेगा, तो इस तरीके से जो मलेरिया का जो ये पैरासाइट है, ये शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है, राइट। अगर हम इसके इटियोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी कैटेगरीज हैं पी विवेक्स, पी वेल्सिफेरम, देन पी मलेरियाई, देन पी ओवेल। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो आउट ऑफ ऑल Falciparum take 9 to 14 days, Vivex takes 12 to 17 days, Ovale takes 16 to 18 days. This is incubation period. Then transmission cycle goes like unaffected mosquito, like mosquito become infected by feeding on a person who has malaria. आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप खुद इंसान जो होता है वो खुद मलेरिया को जो है ज्यादा घातक बनाता है, मलेरिया को खुद स्प्रेड करने में योगदान देता है। कैसे देता है? डेसिफिकेशन और जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके अंदर अगर आपका इंफेक्टेड स्टूल है, इंफेक्टेड यूरिन मौजूद है, अगर उसके ऊपर मच्छर बैठता है जो कि जिसके अंदर मलेरिया का वो पैरासाइट मौजूद नहीं है, तो अगर वो ड्रेनेज सिस्टम या वो पीसेस के ऊपर अगर के अंदर वो कंटेंट मौजूद है, तो अगर वो मॉस्किटो वहां पे बैठेगा, वो उसको बाइट करेगा, तो उसके शरीर में भी वो पैरासाइट चला जाएगा और फिर वो जब जाएगा किसी, वो मच्छर उड़ के जब किसी अनइंफेक्टेड पर्सन के पास जाएगा, यानी कि जो हेल्दी पर्सन जब वो उसको काटेगा, तो वो अपने सलाइवा के थ्रू क्या करेगा, उस हेल्दी पर्सन को वो मलेरिया को ट्रांसमिट कर देगा, यानी कि वो पैरासाइट को दूसरे के शरीर में ट्रांसमिट कर देगा। तो ये हमारी एक साइकिल चलती है मलेरिया की कि किस तरीके से जो मलेरिया है वो बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो अनइंफेक्टेड मॉस्किटो, then transmission of parasite. If this mosquito bite person in future, it can transmit malaria parasite to the same person. Then in liver, once the parasite entered into the body, they travel to the liver, into the bloodstream. When the parasite mature, they leave the liver and infect the red blood cell, and this when people typically develop malaria symptoms. On the next person, if an uninfected mosquito bite you at this point in the cycle, it will become infected with your malaria parasite and can spread them to the other people it bites. Then other mode of transmission, because the parasite that cause malaria affect red blood cell, people can also catch malaria from exposure to infected blood, including from mother to unborn child, through blood transfusion and by sharing the needle used to injected drug. अब इसको एक बार ध्यान से सुन लेते हैं स्टोरी की तरह। देखो इसका ट्रांसमिशन साइकिल क्या होता है। सबसे पहली बात आपका कहानी के अंदर आता है अनइंफेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट मौजूद नहीं है, वो क्या करता है, वो जब ऐसे किसी एरिया पे या ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठता है जिसके ऊपर ये पैरासाइट मौजूद है, वो उसको कैरी कर लेता है, ठीक है। वो ट्रांसमिट करता है इस पैरासाइट को
टू द पर्सन जो कि अनइंफेक्टेड है, उसके ऊपर बैठेगा, उसको बाइट करेगा, उसको मलेरिया ट्रांसमिट कर देगा। जब मलेरिया बॉडी के अंदर जाने लगेगा तो वो सीधा एंट्री करेगा हमारे लिवर के अंदर, ठीक है। और आपको इतनी बात भी पता होनी चाहिए कि लिवर के अंदर योर आरबीसीज आफ्टर देयर 120 डेज का जब वो फंक्शन परफॉर्म करे उसके बाद दे कन्वर्ट इनटू बिलिरुबिन, राइट। अब वो हमारे फीचर्स के थ्रू निकलता है, ये बात हमें पता है पहले से, ठीक है। लिवर को ये सबसे पहले डैमेज करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपकी आरबीसी को डैमेज करना शुरू करेगा। देखो दोनों में डिफरेंस अब समझ में आएगा ना। डेंगू में क्या हो रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक हो रहा है। मलेरिया में क्या हो रहा है, आपकी रेड ब्लड सेल्स पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इन दोनों चीजों का डिफरेंस आपको याद रखना है। देन इसके अलावा मलेरिया कैसे फैलता है। एक मदर जो अनबॉर्न चाइल्ड को क्या करती है, कैरी करती है, वो अपने बच्चे को मलेरिया जो है ट्रांसमिट कर सकती है प्लेसेंटा के थ्रू। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, अगर ये मलेरिया का कीटाणु इंक्यूबेशन पीरियड में है, विंडो पीरियड में है, तब वो आप जब ब्लड सैंपल लोगे क्रॉस मैचिंग के लिए तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर आपको कोई भी एबनॉर्मेलिटी दिखाई नहीं देगी। और जब आप ट्रांसफ्यूज कर दोगे, यानी कि जैसे मुझे खून की जरूरत है, मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जब आपने क्रॉस मैचिंग करी तो उसके अंदर इस तरीके का कोई कीटाणु मौजूद नहीं दिखा, क्योंकि वो विंडो पीरियड में है, वो छुपा हुआ है ब्लड के अंदर, ठीक है। आपने वो ब्लड उठा के मुझे ट्रांसफ्यूज कर दिया, 1 आउंस जितना भी आपको करना था, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड सो ऑन। क्या होगा, मेरे अंदर वो मलेरिया का कीटाणु आ गया, वो अपने विंडो पीरियड में छुपा रहेगा मेरे शरीर के अंदर, और आफ्टर 14 to 17 डेज वो अपने मल्टीप्लाई करेगा, मेरे लिवर के अंदर चला जाएगा, मेरे आरबीसी को डैमेज करेगा और धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ मेरे को मलेरिया जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा शेयरिंग नीडल्स यूज टू इंजेक्ट द ड्रग। जैसे आप हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो, हॉस्पिटल में नर्सेस क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लो, मतलब मैं किसी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, हर एक हॉस्पिटल के अंदर सब लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं पे भी एक निडल से ही आप 10 लोगों को इंजेक्शन लगा देते हो अगर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि आप मलेरिया को एक पर्सन से लेके दूसरे के अंदर ट्रांसफर इजीली कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स दी साइकिल। अब ये साइकिल एक बार देख लो, स्टेट, देखो ये अब साइकिल देखो, इसके अंदर क्या चल रहा है। कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये सबसे पहला इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ये गया फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन के पास, इसने इसको बाइट करा, देन इन्फेक्टेड लिवर सेल इसमें से निकल के इसके लिवर में जाके उसके सेल्स को, यानी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डेड ब्लड सेल्स, इसको अफेक्ट करता है। देन सेकेंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो वो फिर आएगा, वो किसी पर्सन को इन्फेक्ट बाइट करेगा और फिर से वो सेकेंड पर्सन को जो है अफेक्ट कर सकता है, और ये साइकिल जो इसी तरीके से चलती रहती है। और इसी तरीके से ये जो है एक कम्युनिटी लेवल पे एक पेंडेमिक की तरह, एपिडेमिक की तरह डेवलप हो जाता है। देन can be the clinical manifestation: high fever, headache, muscle pain, nausea, diarrhea, sweating, anemia, chills, jaundice, dehydration, fatigue। ठीक है, तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो शरीर के अंदर आपको दिखाई देंगे। पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर तो आपको पता ही चलेगा, हेडेक होगा, मसल पेन, नोजिया, डायरिया, स्वेटिंग। अनीमिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ही नहीं है, तो फिर प्लेटलेट्स में वो सॉरी आरबीसीज नहीं है, तो फिर पेशेंट का क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड सुपरफिशियल लेयर जो सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जब आरबीसीज नहीं है तो बॉन्डिंग भी नहीं होगी हीमोग्लोबिन के, दिस इज हाउ पेशेंट विल बिकम एनीमिक। देन जॉइंटिस हो सकता है, क्योंकि लिवर अफेक्ट हो रहा है, लिवर की फंक्शनिंग पे अफेक्ट हो रहा है, आरबीसी पे नॉर्मेलिटी डेवलप हो रही है, तो उस वजह से जॉइंटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। बाकी जो है ये कॉमन सिम्टम्स है, तो इसको इतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। देन इन्वेस्टिगेशन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आता है ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन फॉर मलेरिया पैरासाइट, जिसको शॉर्ट में हम BFMT भी बोलते हैं। इसके अंदर दो तरीके आते हैं, पहला आता है थिक ब्लड फिल्म, दूसरा आता है थिन ब्लड फिल्म। Thick blood film detect the low level of parasitemia. Then thin blood film identify the parasite. Myofilology. ठीक है, if you want to detect the myofilology, then you have to go for thin blood filming. And if you want to know the consistency, the amount, or the what type of microorganism it is, then you have to go for thick blood film. Then quantitative Buffy coat test, staining of compressed red blood cells layer,
with acridine orange and examining it in the UV light. आप acridine orange dye का इस्तेमाल करेंगे, UV light उस पर एक्सपोज करेंगे, then you will going to identify कितना % जो है वहाँ पे जो RBCs है वो प्रेजेंट है. Then rapid diagnostic test में detecting malaria antigen for a malaria parasite and polymerase chain reaction to rule out the type of species. कौन से species जो है जिसकी वजह से मलेरिया डेवलप हुआ है वो आप जो है polymerase chain reaction से पता लगाएंगे. ठीक है. Then next comes the other investigations. Other investigations में क्या क्या आता है? Complete blood count, blood level of glucose, renal profile, urine analysis, liver function test, other rapid tests to rule out the dengue or leptospirosis. Then QBC मलेरिया टेस्ट भी एक होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, ब्लड इज टेकन इन द QBC मलेरिया ट्यूब. मलेरिया ट्यूब होती है जिसके अंदर दैट ट्यूब इज कोटेड विद एक्रेडिन ऑरेंज. दैट डाई ऑलरेडी जो है वो कोटेड होती है उसके अंदर. Constitutes for 5 minutes, then viewed under the fluorescent microscope, then malaria parasites are seen concentrated, shining in the background of a dark red blood cell. इस तरीके की अगर appearance दिखती है, that means मलेरिया जो है हमारा पॉजिटिव है. ये सिर्फ मैंने एडिशनल इसके अंदर ऐड करा. देखो थिन एंड थिक स्मीयर कैसे बनता है, ये थिन स्मीयर है, ये थिक स्मीयर है. ठीक, इस तरीके के माइक्रोस्कोप के अंदर आपको स्टेनिंग सिस्टम के अंदर इस तरीके से टाइप्स ऑफ मलेरिया कौन सा स्पीशीज का है वो आपको पता चलता है. देन इफ यू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या है, एंटी मलेरिया ड्रग्स के अंदर क्या क्या आएगा, क्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, मैफ्लोक्विलिन, क्विनिनाइन, artemisinin drugs, and supportive management for other complications like diarrhea, constipation, swelling, itching, like that. Okay. Talk about nursing diagnosis and risk of infection related to weakened immune system. Then hyperthermia related to increased metabolic rate and dehydration. Impaired tissue perfusion related to decrease in the cellular component needed for the release of oxygen and the nutrition in the body. Then fluid volume deficit related to excessive sweating and dehydration. Then knowledge deficit related to lack of exposure and information about the disease process, its treatment and prognosis. Then what are the interventions you can do for patient? If patient is suffering from hyperpyrexia, then what you can do? You can provide warm blanket, adequate clothing, administer antipyretic drugs as ordered. For tissue perfusion, you will provide supplemental oxygen in the condition if the condition is severe, and then maintain well ventilated room. Head of the bed should remain 30 degrees. Less activity is required and moderate high exertion. Then improve fluid volume, accept loss of fluid through sweat, provide information about fluid balance and guidelines for the fluid replacement, encourage oral fluid diet and intake, administer parenteral fluids as ordered. And to improve the education of the patient and the family, you can discuss the importance of adhering to therapy, review the disease process and therapy focusing on the patient concern, have a family member or trusted individual listen to understanding the guidelines of the treatment that patient chooses, go over the medication purpose, frequency, doses and side effects.